Sri Sarada Peetham in our midst. His presence is a blessing and an inspiration for each one of us. Sungeri Sarada Peetham, established by Adi Sankaracharya over 1200 years ago, has been a beacon of wisdom, dharma, and spiritual guidance. Teachings of Advaita Vedanta reminds us of the oneness of all existence and the importance of living a life rooted in truth and harmony. Jagat Guru Mahaswamiji, for the underprivileged through the education, skilling, and holistic developments, striving for a sustainable and positive impact. GMR Group started by 50 years back, sir. I started in my village, small village near Vishakhapatnam. Before economic liberalization, so many businesses had started. After the economic liberalization, and based on the country's economic liberalization, we disinvested all. We decided to focus on only on infrastructure. We create a vision. We want to create an institution in perpetuity, create a value to the society. Whatever the value to the society, all the business what we do is a new to us and new to country. The airports and all the business is new to us, but we believe that these are the national assets. It is given by the God has given opportunity to serve the through infrastructure. The first we got a greenfield airport in Hyderabad in 1998, but we built in 2008 world-class airport we built, and after that we got a, this is the greenfield. This is a brownfield airport. Delhi Bombay airport called for bidding. Then we won both the airports, and Delhi we chosen. And when you taken this land, 5,300 acres, 40% occupied unauthorized people, and everything vacated and systematically this. We made it a Aero City with this Mr. Master Plan. We made it. In 2006 we were taken over. 2010 we built a Terminal T3 before the Commonwealth Games, and this is all our GMR delegated team. Now at the time of taking over airport, in the world, we are the worst. That all credit goes to our GMR team, because there is a service standard, 32 service standards are there, from toilet to everywhere, service standards. With this, we went to international.
Today we are doing at Delhi, Hyderabad, and Goa. We got a Goa airport. Now recently we are building near Vishakhapatnam new airport. We are building. Nagpur also we get. Internationally we got a Greece and also in Medan Indonesian airport. Besides that we got energy also. Power plants, we have power plants. Nagpur also one. We are maybe January we will take. This is the infrastructure we are doing. We thought that this is the, after the building the airport, a lot of economic development happened. We made an NCR study. So much of economic development for GDP growth for the country and the nation. In this, I request you, today's fast-paced world, we often seek balance between professional demands and personal well-being. That is why, with a deep devotion and humility, I request Jagat Guru Swamiji to bless us today by speaking on the subject Seva of Infrastructure, learning and reflecting on his humbly seek His Holiness guidance on integrating inner awareness with our pursuit of excellence, transforming our work into worship and enterprise into service to the nation and God. I encourage everyone to listen with an open mind and heart, learning and reflecting on His Holiness words. These teachings are universal, guiding us all toward the meaningful lives. The GMR family is grateful to His Holiness presence, and we welcome His wisdom. His divine presence reminds us that business and spirituality can coexist, and we seek His inspiration to see our daily work as a seva and our success as sadhana. Pranam Swaminiji, and we humbly invite you, Holiness, to address us. श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। ये GMR ग्रुप ऑफ कंपनी जो है, ये बहुत साल पहले एक जगह में शुरू होकर उसके बाद विशेष रूप से बढ़ते हुए आज हमारे देश के एक प्रतिष्ठित संस्था के रूप में ये इतना सर्वोच्च स्थान में विराजमान है। ये संस्था, ये बहुत बहुत संतोषजनक बात है। और जैसे अभी अभी GM राव जी ने अपने भाषण में कहा, उस प्रकार हमारे देश में और विदेश में भी कई प्रकार के कार्यों से हमारे देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाली एक संस्था के रूप में ये संस्था विराजमान है, जिस संस्था के द्वारा किए गए कार्यों को देखकर सभी लोग इस देश की और इस संस्था की भी बड़ी प्रशंसा करते हैं। और हमने भी स्वयं इस संस्था के कार्यों को यहाँ स्वयं देखकर बहुत प्रसन्न हुए थे। ऐसा काम इस संस्था के द्वारा और जो इस संस्था के काम करने वाले सभी अधिकारीगण जो यहाँ आज हमारे सामने कुछ लोग यहाँ आए हैं, आप सबके द्वारा ऐसे अच्छे अच्छे काम इस संस्था के द्वारा हो रहे हैं, जिसके फल को सभी लोग देख रहे हैं और ये विशिष्ट प्रशंसा का भी पात्र बना हुआ है। ये बहुत बहुत संतोषजनक बात है। ऐसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के द्वारा और इस संस्था में काम करने वाले आप जैसे सज्जनों के द्वारा देश में
एक अच्छी प्रतिष्ठा, देश की अच्छी प्रतिष्ठा विश्व में बढ़ती है। ये बहुत बहुत संतोषजनक बात है। यहाँ सबको भी एक बात को अच्छी तरह समझना चाहिए कि ये जो मनुष्य जन्म है ये बहुत ही दुर्लभ होता है। इस दुनिया में, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि इस दुनिया में 84 लाख प्रकार के प्राणी हैं, जिनमें से मनुष्य भी एक है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि 84 लाख प्रकार के प्राणियों में से मनुष्य भी एक होता है। परंतु अगर योग्यता के विषय में, ताकत के विषय में अगर हम सोचेंगे तो बाकी सभी प्राणी एक तरह होते हैं, मनुष्य एक तरफ हो जाता है। सिर्फ मनुष्य एक तरफ होता है, क्योंकि बाकी किसी भी जानवर में, प्राणी में जो ताकत नहीं दिखाई देती है वो मनुष्य में ही दिखाई देता है। देखिए, यहाँ मनुष्य के पास, एक हाथी के पास जितनी ताकत है उतनी ताकत मनुष्य के पास नहीं है। या तो एक पंछी जैसा आसमान में वो उड़ नहीं सकता है, या तो एक बड़ी मछली जैसा वो पानी के अंदर जा नहीं सकता है। फिर भी मनुष्य के पास ऐसी एक शक्ति है कि बहुत सामर्थ्यशाली हाथी को भी अपना वश में कर लेता है। ऐसा एक सामर्थ्य मनुष्य के पास है। हाथी के पास जितना ताकत है उतना नहीं है, फिर भी एक हाथी को भी अपना वश में कर लेता है। ये जैसा कहता है ऐसा वो हाथी सुनता है और हाथी के द्वारा काम करवाता है। ऐसा करने का सामर्थ्य मनुष्य के पास है। और एक, जैसा अभी कहा गया, एक पंछी के जैसा आसमान में उड़ नहीं सकता है, लेकिन उड़ने का जो साधन होता है उसको बना सकता है। उसको बनाकर उसके द्वारा पंछी से भी आगे तक उड़ सकता है। और जो पानी के अंदर से जाने वाला वस्तु को भी बना सकता है और उसके द्वारा कहीं भी जा सकता है। अंतरिक्ष में भी जा सकता है, पानी में भी जा सकता है। इस प्रकार के पदार्थों को मनुष्य बना सकता है। ये सब मनुष्य की जो बुद्धि है, इस बुद्धि के द्वारा इन सभी पदार्थों को बना सकता है। सिर्फ बुद्धि ही नहीं, इस दुनिया में जो भी पदार्थ हमारे लिए उपलब्ध है, जिन पदार्थों को भगवान ने सृष्टि करके हमारे लिए दिया, भगवान ने क्या किया, इस विश्व का, ये जो 5 भौतिक विश्व जो है, इस विश्व की सृष्टि को भगवान ने की और इसमें जीवन करने के लिए हम सबको बनाया। और इसमें से हमारे लिए जो कुछ भी आवश्यक है, इन्हें बनाने का एक बुद्धि शक्ति भी भगवान ने हमें प्रदान किया। और किस वस्तु को कैसा बनाना है, इस प्रकार का जो ज्ञान है, इसको भी भगवान ने हमें दिया, भगवान ने हमको दिया। और इसके द्वारा इस विश्व में से सभी पदार्थों को लेकर अपने लिए जैसा उसका उपयोग प्राप्त होगा, उसके प्रकार हम उस पदार्थ को बना सकते हैं। ऐसा बनाने का एक सामर्थ्य भगवान ने हमें प्रदान किया। इसके द्वारा हम ये सब कर रहे हैं, बहुत कुछ तैयार कर रहे हैं। आज तो हमारे देश में टेक्नोलॉजी, इस विश्व में ही टेक्नोलॉजी जो है ये इतनी बढ़ गई है। बहुत सारे काम जिसे करने में एक समय में, एक ज़माने में बहुत मुश्किल होता था, बहुत लोग बहुत साल बैठकर जिस काम संपन्न करते थे, वो काम आज सिर्फ एक व्यक्ति कुछ घंटों में ही समाप्त कर सकता है। ऐसे पदार्थों को मनुष्य ने बनाया, उसका उपयोग तो हम सब प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसे एक समय में बहुत लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि हम इतना, टेक्नोलॉजी है, आज इतना बढ़ गया है टेक्नोलॉजी, हम इतना आधुनिक समय में पहुंच गए हैं, बहुत सारे पदार्थों को हमने बनाया,
लोगों ने बनाया और उसका इस्तेमाल भी हम कर रहे हैं। इतनी सुविधाएं दुनिया में बढ़ गई है। ऐसे होते हुए धर्म की क्या आवश्यकता है? धर्म और अधर्म, पुण्य पाप, ये सब क्या है? इनकी क्या आवश्यकता है ऐसे समय में? ऐसा कुछ लोग प्रश्न करते हैं। हम तो बहुत बुद्धिमान हैं, बुद्धिशाली हैं, हमारे लिए जो कुछ भी संभव है हम सब कुछ बना रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में धर्म और अधर्म, ये शास्त्र परंपरा, इनके बारे में जो कुछ भी आप कहते हैं, इन सब की क्या आवश्यकता है? ऐसा कुछ लोग, बहुत लोगों के मन में ऐसा प्रश्न उठता है। इसकी आवश्यकता नहीं है, ये सब जो है ये सब पुरानी बातें हैं। शास्त्र परंपरा, शास्त्र होना है, परंपरा होना है, आचार सदाचार, धर्म और अधर्म, धर्म का आचरण करो और अधर्म का आचरण मत करो, ये सारी बातें जो है ये सब पुरानी बातें हैं। इस समय के लिए ऐसा बात करना उचित नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए जो कुछ भी चाहिए हम सब कुछ बना सकते हैं, ऐसा लोग सोचते रहते हैं। तो इनकी क्या आवश्यकता है? परंतु यहाँ ये बात तो सच है कि दुनिया में टेक्नोलॉजी बढ़ गया है और बहुत सारे चीज़ों को हम बना रहे हैं अपनी बुद्धि शक्ति से। बहुत सारे अद्भुत पदार्थों को हम बना रहे हैं, बहुत सारी सुविधाएं बढ़ गई है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये बिल्कुल सच है। परंतु ये बात जितना सच है कि सुविधाएं ज़्यादा बढ़ गई है और टेक्नोलॉजी भी बहुत बढ़ गया है, अद्भुत पदार्थों का भी तैयारी हो रही है, ये जितना सच है उतना ही और एक सच भी है कि इस दुनिया में दुख कम नहीं हुआ है, ये भी उतना ही सच है। जितनी सुविधाएं हैं दुनिया में, दुख भी उतना ही है, दुख कम नहीं हुआ है। आज भी लोग हैं, बहुत लोग हैं, इतनी सुविधाओं के बीच में भी दुख प्राप्त कर रहे हैं, बहुत लोग, दुखी लोग बहुत लोग हैं। और एक समय ऐसा भी था जब ये कोई सुविधाएं नहीं थी, उस समय में भी सुखी लोग बहुत लोग थे, सुख से रहने वाले लोग पहले भी थे, और इतनी सुविधाओं के बीच में भी दुख प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे लोग बहुत लोग हैं। मतलब दुनिया की स्थिति बदल रही है, दुनिया में सुविधाएं बढ़ रही है, परंतु सुख दुख की क्या बात है? सुख दुख तो ऐसा ही है। पहले भी सुखी लोग थे और दुखी लोग भी थे, और आज भी इतनी सुविधाओं के बीच में भी दुख प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे बहुत लोग हैं। सुखी लोग भी है, सुखी लोग भी है और दुखी लोग भी है। और हम ही कहते हैं, बहुत बार बहुत लोग कहते हैं कि पहले जमाने में ये सारी सुविधाएं नहीं थी, इसीलिए उस समय में लोगों को बहुत दुख होता था, बहुत कष्ट उठाना पड़ता था, ऐसा भी लोग हम बोलते हैं। और हम ही ऐसा भी बोलते हैं कि एक जमाने में ये सारी सुविधाएं नहीं थी, इसीलिए लोग बहुत सुखी थे। आज ये सब आ गए हैं, इसके द्वारा बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा है, बहुत सारी समस्याएं भी बढ़ गई है, ऐसा भी लोग कहते हैं, हम ही कहते हैं। एक जमाने में ये सब नहीं था, इसीलिए लोग सुखी थे, ऐसा भी हम ही कहते हैं एक समय में। फिर और एक समय में हम ही क्या कहते हैं, जब इन सुविधाओं के बीच में रहते हुए भी हमें सुख दुख होता है, तब हम कहते हैं कि ये सुविधाएं नहीं थी, इसीलिए लोग बहुत खुश थे एक समय में, लेकिन आज ये सब आ गए हैं, इसीलिए बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा है। ऐसा ही हम भी कहते हैं, हम ही ऐसा ही कहते हैं। दोनों प्रकारों की बातें हमसे ही होती रहती है। इसीलिए दुनिया में दुख ऐसा ही है, पहला भी था, आज भी है। जगत गुरु आद्य शंकर भगवत्पादाचार्य जी कहते हैं, इस दुनिया के बारे में, संसार के बारे में जब वे उपदेश कर रहे थे, उस समय में उन्होंने ऐसा कहा था, विद्धि व्याध्यभिमानग्रस्तम लोकम शोकहतंच समस्तम, ऐसा उन्होंने कहा। ये जो संसार है, जब तक हम इस संसार में रहेंगे तब तक ये सभी अनिवार्य होते हैं। संसार में हम कहीं भी जाएंगे, ये सब अनिवार्य होते हैं। कहीं भी हम जाएंगे, किसी भी देश में जाएंगे, किसी भी जगह में जाएंगे। आज बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि कुछ देशों के बारे में कहते हैं रहते हैं कि वो देश हमसे भी बहुत आगे है, लगभग कुछ 50 साल 20 साल 50 साल हमसे भी वो देश आगे है, वहाँ की टेक्नोलॉजी उतना है। अगर हमें भी
उतना वहां तक पहुंचना है तो हमें 10 साल लगेंगे, 50 साल लगेंगे, 25 साल लगेंगे, ऐसा कुछ देशों के बारे में वर्णन करते रहते हैं यहाँ के लोग, हमने ऐसा सुना था। लेकिन अगर वहां भी हम जाएंगे, ये जो विचार है ये अनिवार्य है, ऐसा शंकराचार्य जी ने कहा। क्या है ये विचार? विद्धि व्याधि अभिमान ग्रस्तम लोकम शोक हतंच समस्तम। 3 वस्तुओं के बारे में शंकराचार्य जी ने कहा। सबसे पहला है व्याधि। व्याधि मतलब शरीर में कुछ अनारोग्य, तबीयत खराब होना। शरीर में जब तक ये शरीर रहेगा, हम जो कुछ भी करते हैं शरीर से ही करते हैं। अगर शरीर ही ठीक नहीं होगा तो बाकी पदार्थों से हम कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहला शरीर ठीक होना चाहिए। सबसे पहले शरीर अच्छा होना चाहिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। सबसे पहला साधन शरीर होता है और उसके बाद बाकी साधन सब कुछ होते हैं। इसीलिए इस शरीर में किसी प्रकार के व्याधि, ये तो कहाँ भी जहां भी हम जाएंगे वहां होता ही है। इस दुनिया में व्याधि के द्वारा कुछ ना कुछ दुख हमें प्राप्त होता रहता है। ऐसा दुख तो कहाँ जहां भी हम जाएंगे वो होता ही है, व्याधि। और अभिमान, अभिमान शब्द का यहाँ ऐसा अर्थ है कि अहंकार। ये कैसा होता है अहंकार? मतलब ये कैसा होता है? कुछ लोगों में हम देख सकते हैं, कुछ लोगों का स्वभाव कैसा होता है कि मैं जो कहता हूं सिर्फ यही होना चाहिए और मैं किसी का भी नहीं सुनूंगा। ऐसा स्वभाव को हम बहुत लोगों में देखते रहते हैं। सभी लोगों को ऐसा स्वभाव का कोई व्यक्ति मिला हुआ होगा कहीं भी। बहुत लोगों का ऐसा व्यक्ति मिलते हैं कि उनका स्वभाव ऐसा होता है कि सभी लोगों को मैं जो कहता हूं उसी के सुनना होगा, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, फिर भी मैं जो कहता हूं उसी को सभी लोगों को सुनना होगा। और कोई भी कुछ भी कहेगा मैं उसकी बात नहीं सुनूंगा। ऐसा स्वभाव बहुत लोगों में दिखता रहता है। बहुत सारे झगड़ा जब भी होते हैं उनका कारण यही होता है। ये स्वभाव जो है इसी के द्वारा झगड़ा होते रहते हैं दुनिया में। कहीं भी कुछ झगड़ा हुआ उसका कारण यही होता है कि वो जिन दोनों के बीच में ये झगड़ा हो रहा है उन दोनों में से ये स्वभाव दिखाई देता है। अगर इस स्वभाव को हम छोड़ देते हैं तो किसी वाद विवाद का कोई स्थान नहीं होता है इस दुनिया में। जहां भी कुछ विवाद होता है वहां लोगों का यही स्वभाव हमें दिखाई देता है कि सभी लोगों का मैं जो कहता हूं उसे सुनना है। नहीं, आप जो कह रहे हैं वो उतना अच्छा नहीं है, उससे भी ऐसा करना बहुत अच्छा है, तो ऐसा क्यों नहीं करेंगे आप? अगर ऐसा कोई भी उसको कहने का प्रयत्न करेगा वो उसका बात नहीं मानेगा। नहीं नहीं, मैं तेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं जो कहता हूं ऐसा ही होना चाहिए, मुझे सब कुछ मालूम है, मैं जैसा कहता हूं ऐसा ही होना चाहिए। अगर ये जो कह रहा है ये अच्छा है तो ठीक है, उसे ही करना पड़ेगा। लेकिन इससे भी बेहतर उपाय और कुछ है? ऐसा होते हुए भी ये क्या करेगा? अपने अहंकार की वजह से जो दूसरा जो कहता है उसे नहीं सुनता है। वो अगर अच्छा हुआ तो भी उसे नहीं सुनता है। ये जो कह रहा है उससे भी बेहतर विचार उसके पास है, लेकिन उसको ये नहीं सुनता है, सिर्फ अहंकार के कारण। इसी को संस्कृत में यहाँ शंकराचार्य जी ने कहा अभिमान। ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति लोग हमें दुनिया में कहीं भी हम जाएंगे वहां दिखाई देते हैं। वहां ऐसे लोग रहते ही है। उन्हीं के कारण से वाद विवाद होते रहते हैं, तो वहां शांति से कोई रह नहीं सकते हैं। जब शरीर में तबीयत ठीक नहीं है तब भी हम शांति से सुख से नहीं रह सकते हैं। जब ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति लोग हमारे साथ रहते हैं तब वाद विवादों में उस समय में भी हम सुखी नहीं रह सकते हैं। और विधि व्याधि अभिमान ग्रस्तम लोकम शोक हतंच समस्तम। किसी भी प्रकार के कुछ दुख जहां भी हम जाएंगे तो वहां रहते ही है। ये संसार का स्वभाव ही यही है कि दुखित होना। दुख यहाँ दिखाई देता है। हम जितना सुख चाहते हैं उतना सुख हमें नहीं मिलता है। हम ऐसा चाहते हैं कि मुझे किसी भी प्रकार की दुख न हो, फिर भी दुख नहीं रुकता है, दुख आता ही रहता है। इसीलिए दुनिया की स्थिति कैसे भी हो रहे, लेकिन ये दुख तो दुनिया में रहता ही है। अभी भी दुनिया में दुख है, इतनी सारी सुविधाएं हैं, फिर इनके बीच में भी दुख प्राप्त करने वाले लोग बहुत लोग हैं। ये बहुत लोगों के अनुभव का विचार है, अनुभव में ही है, हमारे अनुभव का विचार है। इसीलिए सुविधाएं बहुत बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गया है,
फिर भी दुख कम नहीं हुआ है दुनिया में। ये सच बात है। इस बात को सभी लोगों को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सभी लोगों का अनुभव में रहने वाला विचार है। इसीलिए शास्त्रों में धर्म का आचरण क्यों कहा गया, किसके लिए धर्म का आचरण के बारे में कहा गया? सुख पाने के लिए, श्रेय प्राप्त करने के लिए धर्म का आचरण शास्त्रों में कहा गया है। और अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए, ऐसा भी शास्त्रों में कहा गया। अधर्म का आचरण क्यों शास्त्रों में निषिद्ध किया गया है? क्योंकि अधर्म से हमें दुख प्राप्त होता है। इसीलिए जो दुख प्राप्त नहीं करना चाहते हैं उनको अधर्म को त्यागना है। जो सुख प्राप्त करना चाहते हैं उनको धर्म का आचरण करना चाहिए। इसीलिए शास्त्रों में सुख के लिए धर्म का आचरण, दुख को त्यागने के लिए अधर्म का निषेध, ये दोनों शास्त्रों में किए गए हैं। इसीलिए दुनिया की स्थिति कैसी भी बदल जाए, ऐसा भी हो जाए, ये जो बात है इसमें कोई भेद नहीं होता है। धर्म और अधर्म, सुख और दुख, इन दोनों में कभी भी कोई भी फर्क नहीं होता है। कुछ दुनिया की स्थिति, टेक्नोलॉजी कितना भी बढ़ जाए, दुनिया में कितना भी परिवर्तन हो, कितने भी टेक्नोलॉजी सुविधाएं बढ़ जाए, फिर भी लोगों की इच्छा तो क्या होती है? मुझे सुख पाना चाहिए, कभी भी दुख मुझे नहीं प्राप्त होना चाहिए, ऐसी ही इच्छा होती है। एक 100 साल पहले ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसीलिए उस समय के जो लोग थे वो सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, दुख को छोड़ना चाहते हैं। लेकिन आज तो टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, इसीलिए आज के लोग ऐसा कहेंगे कि मुझे दुख चाहिए, सुख नहीं चाहिए, ऐसा आज के लोग कहेंगे। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। 100 साल पहले हो या 1000 साल पहले हो, और 100 साल के बाद, 1000 साल के बाद भी लोग सुख को ही चाहने वाले हैं और दुख को नहीं प्राप्त करना चाहते हैं। ये इच्छा जो है ये कभी बदलती नहीं, ये सदैव एक ही प्रकार की होती है। चाहे वो एक महाराज हो, एक सेवक हो, एक गरीब हो, एक अमीर हो, एक पंडित हो, एक पामर हो, एक मंद बुद्धि हो, एक बुद्धिमान हो, एक आस्तिक हो, एक नास्तिक हो, चाहे भारत देश का हो या विदेश का कोई हो, इस ब्रह्मांड में किसी भी कोने में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो, वो सुख को ही प्राप्त करना चाहता है, दुख को कभी नहीं प्राप्त करना चाहता है किसी भी समय में। और शास्त्रों में धर्म का आचरण तो सुख पाने के लिए कहा गया है। इसीलिए जब तक हमें सुख पाने की इच्छा होती है तब तक उसके लिए हमें धर्म का आचरण करना ही चाहिए। चाहे दुनिया की स्थिति कैसी भी हो, सुविधाएं कितनी भी बढ़ जाए, देश की स्थिति, दुनिया की स्थिति कितनी भी बदल जाए, ये बात तो नहीं बदलती है। ये जो सुख पाने के लिए धर्म का आचरण जो कहा गया है ये कभी भी नहीं बदलता, क्योंकि जैसे अभी अभी कहा गया कि इतनी सारी सुविधाएं, टेक्नोलॉजी बढ़ने के बाद भी दुनिया में सुख और दुख दोनों भी है। आज पहले भी सुखी लोग थे और दुखी लोग भी थे, और आज भी सुखी लोग हैं, दुखी लोग भी है। ये तो कभी बदला नहीं। एक प्रकार, अभी सुविधाएं इतने बढ़ने के बाद एक प्रकार के दुख कम हो गया, लेकिन दूसरे प्रकार के दुख फिर से आने लगे। इसीलिए सुख और दुख संसार में सदैव रहते ही है। इसीलिए जो सुख पाना चाहते हैं उनको धर्म का आचरण करना ही चाहिए। जो दुख को छोड़ना चाहते हैं, दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, उनको कभी भी अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। ये स्थिति जो है ये कभी नहीं बदलती है। इसीलिए चाहे वो पुराना समय हो या इस टेक्नोलॉजी के समय में हो, और इससे भी 100 गुना अगर आने वाले समय में टेक्नोलॉजी इससे भी ज्यादा हो जाए, तब भी धर्म और अधर्म, इनका जो विचार है ये कभी नहीं बदलता है। इसीलिए अगर हमें, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ये जो सुख मिलने वाला है, सुख पाने के लिए जो सुख साधन है दुनिया में प्रसिद्ध है, धन इत्यादि जो भी सुख साधन के रूप में प्रसिद्ध है, हम इन्हीं से सुख को प्राप्त कर सकते हैं। धर्म का आचरण करने की क्या आवश्यकता है? धर्म से सुख नहीं मिलने वाला है। ये जो सुविधाएं है, ये सुख साधन है, इनसे भी हम सुख प्राप्त कर सकते हैं ना। तो इन धर्माचरणों से
क्या फायदा है, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं। परंतु अगर एक सुख साधन से हमें सुख पाना है, उसके लिए भी धर्म की आवश्यकता है। अगर धर्म हमारे पास नहीं है, तब सुख साधन हमारे हाथ में ही रहेगा, परंतु उससे हम सुख पा नहीं सकते हैं। ऐसा भी बहुत लोगों के अनुभव में ही है ये बात। बहुत कुछ लोग ऐसा होते हैं कि बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत करने से सुख साधन हाथ में मिल जाता है, परंतु जब वो उसको भोगने के लिए प्रयत्न करता है, वो काम नहीं होता, हाथ तक आ गया फिर भी वो नहीं मिलता है। उससे सुख प्राप्त करने में वो असमर्थ हो रहा है। क्यों? साधन तो हाथ में ही है, परंतु उससे वो सुख पा नहीं रहा है, प्राप्त करने में वो विफल हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक सुख साधन से अगर हमें सुख प्राप्त करना है, तब उसके लिए पुण्य की अनुमति चाहिए, चाहे वो कहाँ भी हो वो व्यक्ति। अगर वो पुण्य हमारे पास नहीं है, तब हम उस साधन से सुख को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर पुण्य हमारे पास रहेगा, तब कैसी भी स्थिति में हम रहेंगे, बहुत सुखी रह सकते हैं। सुख साधनों के बिना भी हम बहुत सुखी रह सकते हैं, क्योंकि ये जो सुख पदार्थ जो है, ये और कहीं नहीं है, ये हमारे अंदर ही है। आत्मा का जो सुख है, आत्मा के बारे में शास्त्रों में क्या कहा गया है? विज्ञानम आनंदम ब्रह्मा, ऐसा उपनिषदों में कहा गया है। मतलब हमारी जो आत्मा है, यही आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। हमारी आत्मा जो है, यही आनंद स्वरूप है। जब हम किसी सुख साधन को लेते हैं, उस सुख साधन से हमें सुख नहीं मिलने वाला है। जैसा अभी कहा गया, हमारे कर्म के अनुसार हमारी आत्मस्वरूप जो सुख है, वही हमें मिलता है। इसीलिए सुख को हमें कहाँ ढूंढना है, और बाहर कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाहर सुख नहीं है। सुख कहाँ है? हमारे आत्मा के स्वरूप ही सुख है। क्योंकि आप सब पुराण इत्यादियों में बहुत लोग सुनते हैं कि जो ऋषि लोग थे, वो कई जंगल में या तो कई आश्रमों में रहते थे। जो तपस्वी लोग रहते हैं, वो कई आश्रम में रहते हैं। वहाँ कुछ सुविधाएं नहीं होती है, जंगल में रहना तो बहुत मुश्किल की बात है, ऐसा लगता है सभी लोगों को। लेकिन ऐसी स्थिति में भी वो बहुत सुखी रहते हैं, सभी बाकी लोगों से भी बहुत सुखी रहते थे। क्यों ऐसा? कुछ सुख साधन ही नहीं है, लेकिन वो कैसे सुखी रह सकते थे? क्योंकि सुख बाहर का पदार्थ नहीं है, वो अंदर का ही पदार्थ है। जब हम सुख साधनों को लेते हैं, तब भी हमारा अंदर का जो सुख है, वही अभिव्यक्त होता है, वही व्यक्त होता है, उसी को हम भोगते रहते हैं। एतस्यैव आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवन्ति, ऐसा उपनिषद में कहा गया है। जो ब्रह्म का जो आनंद है, ब्रह्मानंद जो है, जो आत्मस्वरूप आनंद जो है, उसी का एक कण को जब हम किसी भोग्य वस्तु को लेते हैं, उससे हम उस आनंद को, एक कण स्वरूप आनंद को हम प्राप्त करते हैं। परंतु बाकी आनंद जो है, वो इससे भी बहुत गुना अधिक है। बहुत अधिक आनंद हमारा आत्म स्वरूप में है, लेकिन उसका ज्ञान हमें नहीं है। हमें सांसारिक दुनिया में हम रह रहे हैं, इसीलिए उसका ज्ञान हमें नहीं हो रहा है। जो थोड़ा सा इस सांसारिक जीवन में रहते हुए थोड़ा सा अपने मन को इस आध्यात्मिकता के ओर जब हम परिवर्तित करते हैं, तब हम सुख की दिशा में जा सकते हैं और अंत में पूर्ण सुख को हम प्राप्त कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसा प्रश्न कर सकते हैं, कुछ लोगों के मन में ऐसा प्रश्न आ सकता है कि आत्मा ही सुख स्वरूप है, ऐसा आप कह रहे हैं, इसके हम कैसा समझें? हमारी आत्मा ही अगर सुख स्वरूप है, वो हमें क्यों नहीं मिल रहा है? ऐसा कुछ लोगों के मन में प्रश्न आता है। लेकिन यहाँ शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, हमारी आत्मा जो है वो सुख स्वरूप है या नहीं, इसे जानने के लिए एक बात शास्त्रों में कहा गया है। हर एक मनुष्य का हर रोज नींद होती है, निद्रा स्थिति में तो हर एक मनुष्य जाता ही है, हर रोज नींद होती रहती है। नींद के समय में कितना सुख मिलता है? बहुत ही सुख, सबसे अधिक सुख नींद के समय में मिलता है। उस समय में वो सुख कहाँ से मिल रहा है? क्या हमने कुछ खाया? क्या या तो कुछ सुना?
या तो कहाँ कहीं गया, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी भोग्य साधन हमारे पास नहीं है, भोग्य वस्तु कुछ भी हमारे पास नहीं है, उस समय में कुछ भी वस्तु हमारे पास नहीं है, फिर भी जब नींद करते हैं उस समय में सबसे भी अधिक आनंद हर एक व्यक्ति को मिलता है। वो आनंद किस साधन से मिल रहा है? अगर कोई भी सुख साधन हमारे बाजू में रहेगा उस समय में, उसका ज्ञान ही हमें नहीं रहेगा नींद के समय में, फिर भी बाकी समय में कुछ सुख साधन से जितना सुख मिल रहा है उससे भी अधिक सुख हमें नींद से मिल रहा है। तो वो सुख कहाँ से आ रहा है? किसी भोग्य वस्तु है? कोई भी भोग्य वस्तु हमारे पास नहीं है। और नींद का सुख जो होता है वो सभी के लिए एक ही प्रकार का हो, चाहे वो गरीब हो या एक अमीर हो, दोनों भी अगर नींद करते हैं उस समय में एक ही प्रकार का सुख का अनुभव सभी लोगों को होता है। क्यों? क्योंकि वही हमारी आत्मा का सुख है। हमारी आत्मा जो है वो वास्तविक सुख स्वरूप है। भोग्य वस्तुओं में वो सुख नहीं है, हमारी आत्मा ही सुख स्वरूपी है। इसीलिए जब हम नींद करते हैं उस समय में अच्छी तरह आत्मा का सुख हमें अभिव्यक्त होता है, और उससे बाहर आने के लिए बहुत मुश्किल भी होता है, क्योंकि नींद से बाहर आना जो है ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा आना नहीं चाहते हैं लोग। बहुत समय, अगर नींद के लिए बहुत समय मिलेगा तो कुछ समय अगर कुछ काम नहीं होगा तब सभी लोग क्या सोचते हैं, आज मेरा कोई काम नहीं है इसीलिए चैन से मैं आज सो जाऊंगा, चैन से आज मैं सोऊंगा, ऐसा बहुत लोग सोचते हैं। अच्छी तरह नींद करते हैं, अगर नींद ठीक से नहीं होता, उसका आनंद की प्राप्ति अगर नहीं होती, तब बाकी का काम जो होते हैं वो सभी बिगड़ जाते हैं, अच्छी तरह काम करने का मन ही नहीं आता है, क्योंकि वो नींद का सुख जो है वो ही हमारी आत्मा का सुख है। परंतु यहाँ क्या हो रहा है, नींद ये सिर्फ आपको समझाने के लिए शास्त्रों में कहा गया है। आत्मा स्वरूप सुख जो है वो कैसा होता है उसे सिर्फ बताने के लिए इतना कहा गया है। लेकिन नींद में जो सबसे अधिक सुख हमें मिलता है वो भी पूरा सुख नहीं है, वो भी थोड़ा सा ही सुख है। असली सुख जो है, आत्मा का आत्मस्वरूप सुख जो है वो सबसे अधिक है। ऐसा सबसे अधिक सुख को प्राप्त करना ही शास्त्रों में मोक्ष कहा गया है। अभी नींद की अवस्था में तो सुख प्राप्त हो रहा है, लेकिन वो कब तक रहेगा? कुछ घंटे तक रहेगा, क्योंकि कुछ घंटे के बाद नींद में भी हम नहीं रह सकते हैं, फिर बाहर ही आना पड़ता है, क्योंकि कुछ घंटे होने के बाद हमारा मन कहता है कि उठो, तुम्हें ऐसा ही नींद करते नहीं रह सकते। 10-15 दिन तक कोई ऐसा नींद करते नहीं रह सकता है। कोई भी कुछ घंटे तक, हर रोज कुछ घंटे तक ही सो सकता है। 1-2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते तक लगातार कोई भी नींद नहीं कर सकता है, क्योंकि कर्म जो है वो हमें जगाता है। हमसे हमारा जो कुछ भी कर्म है वो हमें जगाता है, उठो फिर अपना काम में जाओ, अपने संसारिक प्रपंच में जाओ, ऐसा वो काम हमें भेजता रहता है। वो कर्म जो है वो हमें उठाता रहता है। इसीलिए नींद के समय में थोड़ा सा सुख, वो आत्म स्वरूप सुख की जानकारी हमें मिल रही है, उसका ज्ञान हमें मिल रहा है, लेकिन वो पूर्ण रूप से कब हमें मिलता है? जब हम मोक्ष प्राप्त करते हैं तभी पूर्ण सुख हमें प्राप्त होता है। परंतु मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आध्यात्मिक साधना करनी चाहिए। आध्यात्मिक साधना जो है, इसीलिए इसको आध्यात्मिक साधना इसीलिए कहते हैं। ये जो शब्द है आध्यात्मिक साधना यानी आत्म संबंधी साधना, आत्मा की जो साधना होती है, हमारी आत्मा जो है इसको जानने के लिए जो साधना की जाती है इसी उसको आध्यात्मिक कहते हैं। आत्मा के संबंधी साधना, उसको आध्यात्मिक साधना, ऐसा इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है। हमारी आत्मा जो है, जीवात्मा और परमात्मा का क्या स्वरूप है, जीवात्मा का क्या स्वरूप है, इन दोनों का जो ऐक्य है, इसको जानने के लिए, यही अद्वैत तत्व है। इसी अद्वैत तत्व को जानने के लिए जिस साधना को हमें करना पड़ेगा उसी साधना को आध्यात्मिक साधना ऐसा कहते हैं। इसीलिए जब हम ऐसी आध्यात्मिक साधना करेंगे तब हमारे नींद में जो सुख हमें मिल रहा है उसका, आत्मा का पूर्ण स्वरूप का सुख हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे सुख को ही शास्त्रों में मोक्ष कहा गया है।
जब हम ऐसा मोक्ष को एक बार प्राप्त कर लेते हैं, तब उसके बाद फिर हमें सांसारिक कोई भी दुख हमें नहीं होता है। अभी भी हमें संसार में सुख मिल रहा है, परंतु हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इस सुख के बाद फिर मुझे जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। इसके आज सुख है और कल फिर दुख आने वाला है, और उसके बाद फिर सुख आने वाला है, और उसके बाद फिर दुख आने वाला है। सुख और दुख दोनों की परंपरा जीवन में होती ही रहती है, परंतु जो मोक्ष का जो सुख है वो शाश्वत सुख है। जब वो एक बार मिल जाएगा, वो उसके बाद हमें दूसरे बार दुख प्राप्त करने का अवसर ही नहीं होगा। इसीलिए उसी को मोक्ष कहते हैं शास्त्रों में। उस मोक्ष प्राप्त करने के लिए जिस मार्ग में हमें जाना है, उसी मार्ग को आध्यात्मिक मार्ग कहते हैं। आध्यात्मिक मार्ग में जो कुछ भी साधना कही गई है, उस साधना को वहां जो क्रम कहा गया है, उस क्रम के अनुसार करके जब हम आगे जाते हैं, तब हम अच्छी साधना समाप्त करें, अच्छी तरह साधना समाप्त करके हम पूर्ण रूप से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हर एक व्यक्ति को भी इस धर्म का आचरण और आध्यात्मिक साधना अपने जीवन में बहुत बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम संसार में लौकिक प्रपंच में जितना भी हम पढ़ाई करते हैं, जितना भी काम करते हैं, जितना भी कमाते हैं, जितना भी घर सब कुछ बनाते हैं, ये सब कब तक हमारे पास रहने वाले हैं? जब तक हम इस शरीर में रहते हैं तब तक ही ये हमारे पास रहने वाले हैं। एक दिन तो इस शरीर को ही छोड़ना पड़ेगा सभी लोगों को। ये शरीर ही हमारे साथ रहने वाला नहीं है, और इस शरीर के द्वारा जो कुछ भी हमने प्राप्त किया वो हमारे पास रहने वाला, बिल्कुल हमारे पास रहने वाला नहीं है। इस बात को तो अलग से कहने की आवश्यकता ही नहीं। जब ये शरीर ही हमारे पास नहीं रहने वाला, जन्म से मरण तक जो हमारे पास है, क्योंकि ये पढ़ाई कमाई ये सब तो बाद में हमें मिला है, लेकिन शरीर आरंभ से हमारे साथ है। शरीर का संबंध ही जन्म कहा जाता है, और इस शरीर को छोड़ना ही मरण कहा जाता है। इस शरीर में जब हम रहते हैं, इसी को जीवन कहते हैं। इसीलिए ये शरीर ही हमारे साथ नहीं रहने वाला है। इसीलिए इस शरीर से जो कुछ भी हमने कमाया वो तो हमारे साथ रहने वाला नहीं है। इससे अलग रूप से कहने की आवश्यकता ही नहीं है। इसीलिए हम जितना भी काम करते हैं, इनको तो करना ही पड़ेगा। जीवन में कुछ पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ाई कमाई ये सब बहुत आवश्यक है, परंतु ये सब इससे हमें क्या मिलता है? सिर्फ हम इसके द्वारा जीवन को चला सकते हैं। हमारे जीवन में कोई कमी ना हो, हमें अच्छी तरह जीना चाहिए। जीवन के संदर्भ में अच्छा धन सब कुछ मिलेंगे तो अच्छी सुविधाएं मिल सकती है, तो हम सुखी रह सकते हैं जीवन काल में। बस इतना ही इसका प्रयोजन है। परंतु हर एक मनुष्य के लिए इस जीवन के लिए जो कुछ भी व्यवस्थाएं आवश्यक है, इनको पाना जितना आवश्यक है, इससे भी अधिक आवश्यकता इस जीवन को सफल बनाने में होती है। इस जीवन को चलाना जितना आवश्यक है, उससे भी अधिक आवश्यकता इस जीवन को सफल बनाने में होती है। क्योंकि सिर्फ इस जीवन को चलाने का प्रयत्न ही नहीं, इस जीवन को सार्थक बनाने का प्रयत्न भी हमें करना चाहिए। जीवन को चलाना अलग है, जीवन को सार्थक बनाना अलग बात है। जीवन को कैसा चलाना चाहिए? जैसा अभी कहा गया, अच्छी पढ़ाई करो और अच्छी तरह नौकरी करो और अच्छी तरह कमाओ और उसके द्वारा घर सब कुछ बनाओ, और उससे तेरा जीवन अच्छी तरह चलता रहेगा। जीवन में कोई कमी नहीं होगी, बहुत कुछ मिल जाएगा ऐसा नहीं है, फिर भी कम नहीं होगा। जीवन में किसी बात की कमी नहीं होती है। ऐसा करने से एक अच्छा जीवन का निर्माण हो जाता है। परंतु ऐसा करने से सिर्फ एक जीवन को चलाने के लिए जो कुछ भी चाहिए सिर्फ वही मिल रहा है। इसके द्वारा जीवन सार्थक नहीं होने वाला है। जीवन की सार्थकता तब होती है जब हम आध्यात्मिक साधना करते हैं। क्योंकि ये जन्म हमें क्यों मिला? ये जन्म हमें इसीलिए मिला कि बार बार ऐसा जन्म प्राप्त होने से हम मुक्त हो जाए, मुक्त होने की साधना करें। इसके लिए ये जन्म हमें मिला है। ये जन्म हमें इसीलिए मिला कि
सिर्फ इसमें रहकर सभी सुखों को भोगने के लिए ये जन्म हमें नहीं मिला है। ये जन्म, क्योंकि सभी लोग जानते हैं जन्म से लेकर मरण तक कितने प्रकार के दुख हमें प्राप्त होते हैं। बचपन में कुछ प्रकार के दुख होते हैं, युवावस्था में कुछ प्रकार के दुख होते हैं, बुढ़ापे में कुछ प्रकार के दुख होते हैं। जैसा आरंभ में कहा गया है, अभी जीवन में हर एक व्यक्ति का तो बहुत सारे दुख होते ही है। इसीलिए ये जो जीवन है ये दुखमय जीवन है। इसीलिए ऐसा जीवन बार बार जन्म लेना भी दुख की बात है, और जन्म लेने के बाद भी दुख है, और मरना तो सबसे बहुत बड़ी दुख की बात है, सबसे ज्यादा दुख की बात है। इसीलिए जीवन में दुख ही ज्यादा है। परंतु ऐसा जीवन बार बार हमें प्राप्त होता ही रहता है जब तक हम साधना नहीं करते हैं, आध्यात्मिक साधना नहीं करते हैं। आध्यात्मिक साधना करने से क्या होता है, ये जो जन्म और मरण ये जो भी है, इसका एक फुल स्टॉप हो जाता है, ये बंद हो जाता है। जैसा अभी भी कहा गया, हमें मोक्ष प्राप्त होता है। एक बार मोक्ष प्राप्त होने के बाद फिर से हमें ये जन्म मरण स्वरूप संसार में आने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए ये जन्म हमें इसलिए मिला कि बार बार ऐसा दुखमय जन्म प्राप्त करने से हम मुक्त होने की साधना करें, उसके लिए ये जन्म हमें मिला है। ये मानव जन्म का मुख्य उद्देश्य है। अगर सिर्फ जीवन की व्यवस्था करने पर ही अगर हम ध्यान देते हैं तो ऐसा जीवन की व्यवस्था के लिए ध्यान करने की आवश्यकता, ध्यान देने का कर्तव्य तो सिर्फ मनुष्यों का ही नहीं, जानवर को भी है। क्योंकि जानवरों का भी जीवन है, मनुष्यों का भी जीवन है। जीवन मतलब क्या है, जन्म और मरण, इन दोनों के बीच में जो भी होता है यही जीवन है। और ये सिर्फ मनुष्यों के लिए ही नहीं, जानवरों के लिए भी ये है, जीवन है। परंतु जीने का जो तरीका है वो अलग अलग है। मनुष्यों का जीने के तरीका अलग है, जानवरों के जीने का तरीका अलग है, बस इतना ही फर्क है। परंतु जीवन तो दोनों का भी है, और जीने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा वो हमारे लिए भी आवश्यक है, जानवरों के लिए। जानवर भी जानते हैं कि अपना जीवन कैसा करना है, अपने खाने को कैसा प्राप्त करना है। अगर दूसरे कोई प्राणी इस पर हमला करेगा तब उससे कैसा बचना है, इसका ज्ञान जानवरों को भी है। और जीने के लिए क्या क्या व्यवस्था करना चाहिए, इसका ज्ञान मनुष्य के पास भी है। अगर हम सिर्फ जीवन के बारे में ही सोचते हैं तो ये बात मनुष्यों के लिए भी है और जानवरों के लिए भी है, दोनों का समान है। परंतु जानवरों से भी मनुष्य श्रेष्ठ कब बनता है, जिस कार्य को जानवर नहीं कर सकते हैं सिर्फ मनुष्य ही कर सकते हैं, ऐसे काम जब हम करते हैं तब जानवरों से मनुष्य अलग हो सकता है। वो काम एक है, वही साधना। जैसे अभी कहा गया, ये आध्यात्मिक साधना जो है वो जानवर नहीं कर सकते हैं परंतु मनुष्य कर सकता है। आध्यात्मिक साधना के लिए जो ज्ञान और जो शरीर का निर्माण जो कुछ भी है ये मनुष्य के लिए ही संभव है, जानवरों के लिए उसका ज्ञान नहीं है। जानवरों को अगर हम सिखाएंगे, शास्त्रों के बारे में अगर सिखाएंगे तो उसका ज्ञान जानवरों को नहीं होगा, मनुष्यों को तो उसका ज्ञान मिलेगा। इसीलिए जब हम सिर्फ इस जीवन को चलाने के बात को छोड़कर, वो भी चाहिए क्योंकि जब हम एक बार जन्म ले लेते हैं तो जीवन के बारे में सोचना बहुत ही आवश्यक है, परंतु उसके साथ साथ इस जीवन को सार्थक बनाने के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। इस जीवन को कैसा हम सार्थक बना सकते हैं, जब हम मोक्ष प्राप्त करेंगे या तो मोक्ष प्राप्त करने की साधना का प्रारंभ अगर हम करेंगे तब हम इसके द्वारा इस जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इसीलिए हम सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि जितने भी काम हमें हो, हर रोज आध्यात्मिक साधना के लिए हमें कुछ समय को रखना चाहिए, चाहे वो 5 मिनट हो या 10 मिनट हो या आधा घंटा ही क्यों न हो, परंतु आध्यात्मिक साधना के लिए कुछ समय बहुत ही आवश्यक है हर एक व्यक्ति के जीवन में। इसके द्वारा हम इस जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इसीलिए इस आध्यात्मिक विचार पर भी हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जब हम कुछ समय तक हर रोज आध्यात्मिक साधना करेंगे तब उसके द्वारा हमें अच्छी शांति मिलती है, हमारे मन को अच्छी शांति मिलती है। कुछ समय तक
भगवान की प्रार्थना करो, भगवान का ध्यान करो और कुछ समय तक कुछ अध्ययन करो, जैसा भगवत गीता है और शंकराचार्य के बहुत सारे उपदेश ग्रंथ है, उनका अध्ययन अगर हम थोड़ा सा करना प्रारंभ करेंगे तो वहाँ के जो उपदेश है उनके द्वारा हमें अच्छा ज्ञान मिलता है और उसके द्वारा जीवन में किसी भी प्रकार की स्थिति आए उस समय में हम उस सभी को पार करके आगे जाने का सामर्थ्य हमें मिलता है। यहाँ गीता में भगवान ने एक अच्छा उपदेश किया कि भगवान ने हमें इस शरीर को दिया और इस शरीर के साथ साथ 3 करण, ये शरीर भी उनमें से एक है, त्रिकरण बोलते हैं शास्त्रों में। एक है ये शरीर और दूसरा करण है हमारी बात, वाक, और तीसरा करण है हमारा मन। ऐसा 3 प्रकार के करण हमारे पास है जिनके द्वारा हम सभी काम करते रहते हैं। कुछ काम शरीर से करते हैं, कुछ काम हम बातों से करते हैं, कुछ काम मन से करते हैं, सोचते रहते हैं। सबसे पहला मन में सोचते हैं और उसको ही हम शब्द के रूप में कहते हैं और उसको ही हम शरीर से करते हैं। इसीलिए ऐसा 3 प्रकार के करण भगवान से हमारे लिए दिए गए हैं। इन तीनों से भी हमें तप का आचरण करना चाहिए, ऐसा भगवान ने गीता में कहा। इन तीनों में से सबसे पहला ये शरीर जो है, इसके द्वारा तप का आचरण हमें करना चाहिए, ऐसा भगवान ने कहा। कैसा तप हो सकता है उसके बारे में भगवान ने कहा, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरं तप उच्यते, ऐसा भगवान ने कहा। ये शरीर से किए जाने वाला तप है, ऐसा भगवान ने कहा। क्या क्या है, क्या क्या करने से इस शरीर से ये तप होगा? देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम अंत, ऐसा कहा गया है। सबसे पहले भगवान की पूजा, हर रोज जितना संभव है, जितना हमें समय मिला है, उस समय में पूरा हमारा मन को वही लगाकर भगवान की पूजा करना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, पूजा करने के लिए बैठते हैं लेकिन उसी समय में सब दुनिया के सभी विचारों के बारे में सोचते रहते हैं। बैठे हैं पूजा करने के लिए, 10 मिनट ही पूजा करते, ज़्यादा समय तो नहीं मिलने वाले, काम में जाना ही चाहिए क्योंकि हमारा बहुत सारे कर्तव्य है, हमें ही करना पड़ेगा। टाइम ठीक समय में पहुंचना चाहिए, तो ज़्यादा समय नहीं मिलता है, सिर्फ 10 मिनट ही मिला है। फिर भी उस 10 मिनट में भी पूजा करने के लिए बैठते हैं, या तो स्तोत्र या कुछ पाठ या तो ध्यान करने के लिए भगवान के सामने बैठते हैं। उस समय में दुनिया के सभी विचारों के बारे में, बाकी समय से भी ज़्यादा सोचते हैं, उसी समय में सभी विचारों के बारे में सोचते रहते हैं कि वहाँ क्या करना था, कि उसने क्या किया, इसने क्या किया, वहाँ कहाँ इलेक्शन कहाँ हुआ, उसमें कौन जीत गया, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, उसने मेरे पास पैसा लिया लेकिन मुझे वापस नहीं किया, वो कब देने वाला है, कितना देने वाला है, कितना मुझे मिलना है, इत्यादि विचारों के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, हमें भी इच्छा है कि पूरा मन वही लगाकर ध्यान करने की इच्छा हमें भी है, लेकिन ये नहीं हो रहा है, हम क्या करें, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। परंतु हमें ऐसा करना चाहिए, सबसे पहले हमें संकल्प करना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए। ये संकल्प जो है ये दृढ़ होना चाहिए। संकल्प जितना दृढ़ होता है, काम उतना अच्छी तरह संपन्न होता है। जब हम पूजा घर में प्रवेश करते हैं, उसी समय में हमें मन में संकल्प करना चाहिए कि अभी आने वाले जो 10 मिनट या 15 मिनट, जितना समय हम रखते हैं उतना समय, 10 मिनट हो या 15 हो या 20 मिनट हो या आधा घंटा हो या 1 घंटा हो, ये जो समय है ये मेरी आध्यात्मिक साधना के लिए, भगवान की आराधना के लिए ही ये समय है। और इस समय में दुनिया में कुछ भी हो जाए, चाहे पूरा दुनिया डूब जाए, फिर भी मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा। कुछ भी नहीं होगा, आधा घंटे में क्या डूब जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। फिर भी अगर कुछ भी हो जाए, फिर भी मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा। अगर इस 10 मिनट में ही उतनी बड़ी आपत्ति अगर मुझे मिलने वाली है, तो उसके बारे में भगवान ही सोच लेगा, क्योंकि जिस भगवान के सामने मैं बैठने जा रहा हूं, वही भगवान उसको ठीक कर लेगा। अगर ऐसा कुछ संभावना है, मुझे इस 10 मिनट में ही कुछ आपत्ति होने वाली है, तो उससे मुझे भगवान ही बचाएगा। इसीलिए मैं जिस भगवान के सामने बैठ रहा हूं, वही भगवान मुझे बचाएगा। इसीलिए इस 10 मिनट में कुछ भी होने वाला नहीं है। इसीलिए इस समय में
मुझे अपना मन को पूरा प्रकार से यही लगाकर मुझे भगवान के ध्यान, पूजा इत्यादि जो कुछ भी है उसे करना चाहिए। ऐसा संकल्प बनाकर हमें अंदर जाना चाहिए। ये संकल्प जितना दृढ़ होगा उतना अच्छी तरह ये भगवान की आराधना संपन्न होती है। और उसके बाद 10 मिनट होने के बाद फिर हमें बाहर आना ही चाहिए। आने के बाद हमारा जो कुछ भी काम है उसे हम अच्छी तरह कर सकते हैं। लेकिन ये जो 10 मिनट है ये बहुत मुख्य है। इस 10 मिनट में जैसा अभी भी कहा गया, पूर्ण रूप से हमारे मन को वहां लगाकर अगर हम भगवान का ध्यान या तो पूजा कुछ करेंगे, पूजा पाठ अगर हम कुछ करेंगे, उससे हमें एक अलौकिक शक्ति मिलती है और उस शक्ति से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। इसीलिए ऐसा ये भगवान ने गीता में कहा, देव पूजन, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, और भगवान की पूजा और भगवान के स्वरूप जो सद्गुरु होते हैं, गुरु जिस मार्ग को हमें उपदेश करते हैं उस मार्ग में जाना, गुरु की पूजा। गुरु कौन होते हैं? शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, जो तत्व को स्वयं जानकर, अच्छी तरह जानकर उस तत्व को शिष्यों के लिए अच्छी तरह उपदेश करते हैं, उनको गुरु कहना चाहिए। सिर्फ नाम रखने से कोई गुरु नहीं बनता, या तो भेष बदलने से कोई गुरु नहीं बन सकता। गुरु, कोई भी व्यक्ति गुरु ज्ञान से ही बन सकता है। इसीलिए ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए शंकराचार्य जी ने अपने उपदेशों में कहा, को गुरु हो अधिगत तत्व शिष्य हिताय उद्यत सततम। जो स्वयं ज्ञानी होकर शास्त्रों में जो तत्व कहा गया है उस तत्व को अच्छी तरह जानकर शिष्यों के लिए अच्छी प्रकार से उपदेश करेगा, वो गुरु है, ऐसा शंकराचार्य जी ने कहा। इसलिए ऐसे जो गुरु होते हैं उनकी पूजा करना, जो ज्ञानी होते हैं, जो बड़े होते हैं, उनकी पूजा करना, यह सब शरीर से किया जाता है। इसीलिए शरीर से किए जाने वाला तप है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम और शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा चा। ऐसा शौचम, शौच शब्द का अर्थ है कि परिशुद्ध होना, शुद्ध होना, शरीर को शुद्ध रखना और मन में भी शुद्ध चिंतन करना, ये सब शरीर से किए जाने वाला तप है, ऐसा भगवान ने गीता में कहा। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम। आर्जवम ऐसा एक शब्द कहा गया है भगवान से। इसका क्या अर्थ है कि जिसे हम मन में सोच रहे हैं उससे ही कहना चाहिए, जिसे हम कह रहे हैं उससे ही शरीर से करना चाहिए। मन और शब्द, हमारे बातें और शरीर, तीनों में भी एक ही प्रकार में रहना, इसी को ही आर्जवम कहते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं, मन में कुछ सोचते रहते हैं, बातों में कुछ कहते रहते हैं, शरीर से कुछ और करते हैं। ये कहा कुछ और किया कुछ, ऐसा दुनिया में ऐसे कुछ लोग रहते हैं। वो कहता है कि मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ऐसा करूंगा, लेकिन ऐसा कुछ किया ही नहीं। जो नहीं कहा वो सब कर रहा है। ऐसे लोगों को हम देखते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसे हम मन में सोच रहे हैं उसी को करना चाहिए, जिसे करना है उसी को मन में सोचना चाहिए, उसी को हमें शब्दों से कहना चाहिए। ऐसा रहना ही, इसी गुण को आर्जवम, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। इसीलिए ऐसा करना ये शरीर का तप होता है, ऐसा भगवान ने कहा। ब्रह्मचर्यम अहिंसा चा। ऐसा ब्रह्मचर्य मतलब क्या है? किसी भी नारी के बारे में, या तो किसी भी पुरुष के बारे में, किसी भी महिला के बारे में, किसी भी पुरुष के बारे में मन में किसी भी प्रकार से गलत रूप से नहीं सोचना चाहिए। ये पुरुष के लिए और स्त्रियों के लिए भी, महिलाओं के लिए, दोनों के लिए भी। किसी भी पर पुरुष जो होता है, जो स्त्री होती है, उनके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। कुछ करना तो अलग बात है, कुछ करने के बारे में तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है। गलत रूप से मन में सोचना ही नहीं चाहिए। ऐसा रहना ही तप होता है। किसी भी प्रकार में गलत रूप से, गलत नजर से देखना और गलत रूप से सोचना और गलत काम करना, जो शास्त्र विरुद्ध है, जो दुनिया की स्थिति से भी जो विरुद्ध है, ऐसा करना ये गलत है। ऐसा नहीं करना ही तप है, ऐसा यहाँ कहा गया। इसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्मचर्यम अहिंसा चा। अहिंसा, शरीर से किसी को भी पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहिए, ऐसा रहना, इसी को अहिंसा कहते हैं। ये सब जो है ये शरीर से किए जाने वाला तप है।
और बातों से किए जाने वाला तप के बारे में भी भगवान ने कहा। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितंच यत्, ऐसा भगवान ने कहा। स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वांग्मयम तप उच्यते, ऐसा भगवान ने कहा। अनुद्वेग करम वाक्यम, जब भी हम कुछ कहते हैं हमारी बातों से दूसरों के मन को पीड़ा नहीं होनी चाहिए, ऐसा हमें बात करना है। अनुद्वेग करम वाक्यम, उद्वेग यानी पीड़ा, मन को कोई बाधा नहीं होनी चाहिए दूसरों को, ऐसा हमें बातें करना चाहिए। और ऐसा बात करने के समय में वो सच भी होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरों को मन, अगर दूसरा जो है उसको मन को वो खुश हो जाए, इसीलिए झूठ कहना नहीं चाहिए, झूठे बातें नहीं करनी चाहिए। इसीलिए भगवान ने कहा अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम, सच कहना चाहिए। और उसके बाद भगवान ने कहा प्रिय हितंच यत्, वो हम जो कहते हैं, जो कुछ भी हम बात करते हैं, वो दूसरों के मन को सुख भी होना चाहिए उन बातों के द्वारा, किसी के मन को दुख नहीं होना चाहिए, और वो बात सच होना चाहिए, और वो बात किसी के मन को दुख भी नहीं यानी सुख प्राप्त करना चाहिए इस बातों के द्वारा, ऐसा हमें बात करना चाहिए। यहां सच कहना चाहिए। कुछ लोग ऐसा क्या वो हमारी बात सच भी होनी चाहिए और दूसरों के लिए प्रिय भी होना चाहिए, ऐसा हमें बात करना चाहिए। मतलब ऐसा क्यों कह रहे हैं भगवान? जैसे कि अभी एक बच्चा है, एक व्यक्ति है, वो परीक्षा में फेल हो चुका है, लेकिन उस दिन उसके घर में कुछ कार्यक्रम चल रहा है, बहुत लोग आए हुए हैं, बहुत लोग, उसके रिश्तेदार और उसके मित्र सभी लोग घर में आए हैं। वो परीक्षा में फेल हो चुका है। उस बात को, अगर हम इस बात को उसे कहेंगे तो वो बहुत दुखी होगा, क्योंकि वो उसके मन में बहुत बड़ी आशा थी कि परीक्षा में पास होना चाहिए, ऐसी आशा बहुत थी, और उसने बहुत मेहनत भी किया। आजकल तो ऐसे परीक्षाएं बहुत होती है कि जितना मेहनत करने के बाद भी उसमें पास नहीं हो सकते, 2-3 बार लिखना पड़ेगा। बहुत कम लोग होते हैं एक बार लिखने से ही पास हो जाते हैं, ऐसे ही कुछ परीक्षा होती है। बहुत बार लिखने से भी पास नहीं होते हैं। उन्होंने मेहनत भी किया, अच्छी तरह परीक्षा को भी लिखा, लेकिन पास होना बहुत मुश्किल है। ऐसे कुछ परीक्षाएं हैं आज दुनिया में। इसके मन में बहुत आशा थी कि ये परीक्षा में पास होना चाहिए, लेकिन वो फेल हो गया। उस बात को अगर हम कहेंगे, वो उसका मन को कुछ समय तक दुख होगा, परंतु ऐसे बात, ये तो सच है, लेकिन वो परीक्षा में फेल हुआ, ये बात सच है, लेकिन उस बात को हमें कब कहना चाहिए? जब सभी लोग चले जाते हैं, उस समय में उसको अलग जगह में बुलाकर उसके कान में कहना चाहिए, ये जो देखो ये ऐसा हुआ है, ऐसा कहना चाहिए। जब सभी लोग रहते हैं उसके सामने, उस समय में हम जाकर जोर से घोषणा करेंगे कि ये परीक्षा में पास हो गया, तेरा सब कुछ गया, तुम परीक्षा में फेल हो गया। अगर हम ऐसा कहेंगे तो उससे क्या होगा? हमने जो कुछ भी कहा वो सच ही है, मैं सच ही बोल रहा हूं, परंतु मेरा इस सत्य बात से उसको बहुत दुख हो रहा है, इसीलिए उसको कहने का एक संदर्भ होता है, उस समय में ही कहना चाहिए। ऐसा कहना जो है ये अपने बातों से किए जाने वाला तप होता है, ऐसा भगवान इसीलिए कह रहे हैं। हमारी बातों से किसी के मन को दुख भी नहीं होना चाहिए, और सच भी होना चाहिए, और उनके लिए प्रिय भी होना चाहिए, और उनके लिए हित भी होना चाहिए। मतलब हम जो भी कहते हैं वो उस बात के द्वारा दूसरों को भलाई होनी चाहिए, ऐसे बातों को हमें सदैव करते रहना चाहिए। ऐसा करना जो है ये बातों से किए जाने वाला तप है। और उसके बाद और एक भी कहा गया है, स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वांग्मयं तप उच्यते। स्वाध्याय का अभ्यास, इसका मतलब क्या है? जिस ग्रंथ का अध्ययन करने से हमारे अंदर आध्यात्मिकता बढ़ती है और अच्छे गुणों को हम प्राप्त कर सकते हैं, हमारे जीवन के लिए एक अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त होता है, ऐसे ग्रंथों को सदैव पढ़ते रहना चाहिए। इसी को स्वाध्यायाभ्यसन कहते हैं। जो अच्छे ग्रंथ हैं, जिन ग्रंथों में अच्छे अच्छे विचार कहे गए हैं, उनके द्वारा आध्यात्मिक मार्ग में भी हमें अच्छी प्रगति मिलेगी और लौकिक मार्ग में भी हमें अच्छी प्रगति मिलेगी। ऐसे जो सद्विचार जिन ग्रंथों में होते हैं, ऐसे ग्रंथों के अध्ययन हम अपने मुख से ही करते हैं, इसीलिए इसको भी
ऐसा अध्ययन करते, जब भी हमें समय मिलेगा अच्छे किताब को लेकर उसे पढ़ते रहना चाहिए, उसमें जो ज्ञान दिया गया है उसे हमें प्राप्त करना चाहिए। ऐसा करना जो है इसको वांगमयन तपः ऐसा कहा गया है। ये सब अपने बातों से किए जाने वाला तप है। और एक अंत में और एक है कि हमारे मन से किए जाने वाला तप। ये क्या है? मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम आत्मविनिग्रहः भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते, ऐसा कहा गया है। मनः प्रसादः, सबसे पहला ये बात है कि मन में प्रसन्न रहकर होना चाहिए। हर एक समय में भी मन में प्रसन्न रहना चाहिए। कुछ लोग ऐसा होते हैं, अगर छोटी सी बात भी उसके सामने हो जाए तो उससे बहुत दुखित हो जाते हैं, उससे बहुत नाराज हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, कुछ भी बात बहुत गुस्सा हो जाते हैं, कुछ भी कहते रहते हैं। बात तो बहुत छोटी सी है, परंतु उसी बात को लेकर, छोटी सी बात है लेकिन ये देखते हैं उसे बहुत बड़ा देखते हैं और उससे मन को छोटा कर लेते हैं और बहुत दुखित हो जाते हैं, किसी के पास बात नहीं करते, ऐसा करते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं रहना चाहिए। अगर बात छोटी है उसको ऐसा ही देखकर उसे छोड़ देना चाहिए। अगर बात बड़ी है उसको ऐसा ही देखना चाहिए और तुरंत ही उसके लिए हमें जो कुछ भी करना है उसे करना चाहिए, उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इसीलिए मनः प्रसादः, मन में सदैव प्रसन्न होकर रहना। जो कुछ भी हो रहा है, अगर अच्छा काम अच्छी तरह हो गया तो ठीक है, अच्छी तरह हो गया, क्योंकि अच्छा प्रयत्न किया हमने, अच्छा मेहनत की, इसीलिए काम अच्छी तरह हो गया। और इसे ही ऐसा ही हमें आगे भी करते रहना चाहिए, ऐसा सोचकर आगे बढ़ना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, काम अगर अच्छी तरह हो गया तो तुरंत ही सोचना शुरू करते हैं कि मैंने ये सब कर लिया, मेरी वजह से ये सब हुआ, और मुझसे भी बड़ा आदमी कोई नहीं है, और मुझे छोड़कर कोई भी कुछ नहीं कर सकते हैं, मुझसे बढ़कर और कोई नहीं है, ऐसा सोचने लगते हैं। ऐसा सोचना भी उचित नहीं है। इसीलिए मन, अगर काम अच्छी तरह हुआ तो अच्छी तरह हुआ, मैंने अच्छा मेहनत की और मेरे साथ जो भी लोग हैं सबने अच्छा प्रयत्न किया, तो उसके ये काम अच्छी तरह संपन्न हुआ। और ऐसा काम करने से जो हमें प्रतिष्ठा मिल रहा है इसको हमें ही ऐसा ही रखना चाहिए और ऐसा ही आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए। अगर काम अच्छी तरह नहीं हुआ तब हमें तुरंत ही क्या करना चाहिए? बहुत लोग क्या करते हैं, अगर काम अच्छी तरह नहीं हुआ तो बहुत दुखित हो जाते हैं, मुझसे कुछ नहीं होने वाला है, मैं किसी काम के लिए नहीं हूं, ऐसा सोचते रहते हैं। ऐसा सोचकर बहुत दुखित हो जाते हैं और आगे का जो कुछ भी करना है उसके बारे में सोचते ही नहीं, सब कुछ छोड़ देते हैं। परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर काम ठीक से नहीं हुआ तब तुरंत ही हमें क्या करना है, क्यों नहीं हुआ, कहाँ कमी हुई, इसे अच्छी तरह विचार करके, अच्छी तरह पता करके उसको ठीक करना चाहिए और फिर से आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए मन, ये सब कब होगा? अगर हमारा मन सदैव प्रसन्न होगा तब ही ये सब होते हैं। दुनिया में ऐसे भी कुछ लोग रहते हैं, जब भी हम उनको देखते हैं वो बहुत प्रसन्न रहते हैं। बहुत दुख में रहने वाला आदमी भी अगर एक बार उसको मिल जाता है तो इसका मन भी बहुत हल्का हो जाता है, बहुत प्रसन्न हो जाता है इसका मन भी। ऐसे बहुत लोग रहते हैं दुनिया में, ऐसे बहुत कुछ लोग ऐसा रहते हैं दुनिया में, सदैव स्वयं प्रसन्न रहते हैं और सदैव दूसरों की भलाई को ही चाहते रहते हैं, दूसरों का अच्छा मार्ग दिखाते रहते हैं। जो कुछ भी हुआ उसको अच्छी तरह ही लेते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसा भी बहुत लोग रहते हैं। इसलिए एक छोटी सी कथा याद आ रही है इस संदर्भ में। एक बार एक बहुत बड़ा राज्य था, उस राज्य का एक बहुत बड़ा महाराज था और उस महाराज के पास एक मंत्री था। इस मंत्री का ऐसा स्वभाव है, वो सदैव प्रसन्न रहता है वो मंत्री, और उसका एक आदत यह है कि जो कुछ भी होगा वो ऐसा कहता रहता है कि अब जो हुआ ये हमारी भलाई के लिए ही हुआ है, ऐसा ही सोचता रहता है, ऐसा ही कहता रहता है, सदैव ऐसा ही कहता रहता है। जो कुछ भी हुआ ये हमारी भलाई के लिए ही, ऐसा ही लेता है, सभी विचारों को वो ऐसा ही लेता रहता है। और महाराज को भी इस पर बहुत बड़ा भरोसा है, बहुत बड़ा विश्वास है कि जब भी कुछ अनर्थ हुआ इसके मुख से अगर ऐसा शब्द निकलेगा तब वो भलाई ही, उससे भलाई ही होगी। अगर ये ऐसा कह देगा, इससे मुख से अगर ऐसा शब्द आ जाएगा तब वो भलाई ही होगी। ऐसा विश्वास भी महाराज के मन में उत्पन्न हुआ, क्योंकि ऐसा बार बार ऐसा हो रहा था। तो कुछ भी होगा ये ऐसा ही कहेगा कि ये हमारी भलाई के लिए ही हुआ, इससे भलाई ही होने वाली है, ऐसा ही वो सोचता रहता था, कहता रहता था। तो एक बार क्या हुआ, महाराज कुछ
हथियार चला रहे हैं, उस समय में उनकी उंगली आधा कट गई है, महाराज की उंगली। तो महाराज मंत्री से कहा, देखो यार, मेरी उंगली कट गई है, इससे बहुत दर्द हो रही है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रही है, ऐसा कहा। उस समय में मंत्री ने क्या कहा, महाराज ये भी हमारी भलाई के लिए ही हुई है, ऐसा उसने कह दिया। इस बात को सुनकर महाराज बहुत गुस्से हो गए, महाराज बहुत क्रोधित हो गए। क्या कह रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो तुम, मेरी उंगली कट गई, मुझे इतना दर्द हो रही है, अब तुम ये मेरी भलाई के लिए, किस भलाई, कैसी भलाई, इससे कैसी भलाई होने वाली, मेरी उंगली कट गई है, इससे कैसी भलाई होने वाली है, ये तुम ऐसा बकवास कर रहे हो, मैं तेरा मुंह देखना नहीं चाहता हूं, तुरंत ही निकल जाओ यहां से, मैं तुम्हें काम से निकाल रहा हूं, ऐसा कहकर उसको काम से निकाल दिया। इतना करने के बाद भी मंत्री ने कहा, महाराज मैंने ऐसा कहा, लेकिन आप तो मुझे काम से निकाल रहे हैं, मैं इसको भी ऐसा ही लेता हूं कि ये भी मेरी भलाई के लिए ही हुई है, मेरी भलाई के लिए आप मुझे काम से निकाल रहे हैं, ठीक है, मैं घर जाऊंगा, आपकी आज्ञा है, ऐसा कहकर ये घर चला गया। कुछ दिन हो गया, ये घाव थोड़ा सा कम हो गया, और उसके बाद महाराज शिकार में जाने का मन हुआ था महाराज को, तो ये शिकार में गया, शिकार में बहुत दूर, वहां के जंगल में गया, बहुत दूर तक गया, वहां एक जानवर की पीछा कर रहा था महाराज, उसको मारने के लिए उसका पीछा, शिकार में उसका पीछे चल रहा था। ऐसा जाने के समय में उस जानवर की पीछा करते हुए बहुत दूर चला गया महाराज। उसके साथ जो सैनिक थे वो सैनिक भी इस महाराज का अनुसरण कर नहीं पाए, ये सभी से बहुत तेजी से चला गया महाराज, बहुत दूर चला गया। ऐसा जाने में इसको पता भी नहीं चला कि मैं कितना दूर जा रहा हूं, इसका मन में सिर्फ यही था कि कैसा भी जानवर को मारना है, शिकार करना है, ऐसा सोचकर ये बहुत तेजी से घोड़ों को चलाकर जा रहा था। ऐसा जाते जाते अपने राज्य को भी पार करके किसी और राज्य में भी चला गया, किस जंगल में एक राज्य था वहां पहुंच गया। इसके पीछे जो सैनिक थे वो सभी पीछे ही रह गए थे, ये अकेला पड़ गया। उस समय में कुछ दूसरा राज्य में चला गया, जंगल में जो लोग रहते हैं उनका एक छोटा सा राज्य है, उसके अंदर चला गया। जब ये वहां गया, उस समय में वहां के जो लोग थे, उस राज्य के जो सैनिक लोग थे, उन्होंने इसे देखा, सोचा था कि ये कोई आदमी हमारे राज्य में प्रवेश कर या बिना अनुमति हमारे राज्य में आ गया, इसीलिए ये ऐसा करना उचित नहीं, ऐसा कहकर, ऐसा सोचकर उसको बंदी बना दिया, इस महाराज को पकड़ के बंदी बना दिया। बंदी बनाकर अपने महाराज के पास लेके गया। इसने बोला था कि ये देखो, मैं महाराज हूँ, ये दूसरा जो राज्य का मैं महाराज हूँ, मैं शिकार में यहाँ तक आया हूँ, ऐसा ये बोल रहा था, लेकिन इसकी भाषा उसको समझ में नहीं आती, उसकी भाषा इसको समझ में नहीं आती है। ये बहुत बोल रहा था, लेकिन वो लोग सुन नहीं रहे, तो उसको उसके बंदी बनाकर वो अपने महाराज के पास लेके गया। महाराज ने उसको ठीक से देखा, ये तो महाराज है, ये भी महाराज है, इसलिए अच्छा किरीट, आभरण, मकुट, आभरण, सब कुछ गहना सब कुछ पहन के आया है। उसे देखकर महाराज ने कुछ समय तक सोचकर, उनके महाराज जो था, जंगल के जो लोग हैं उनके महाराज, कुछ समय तक सोचकर ऐसा कहा था, ऐसा आदेश दिया कि देखो, अभी 2 दिन में जो हमारी आराधना जो होने वाली, हमारी देवता की जो आराधना होने वाली है, उस आराधना में एक व्यक्ति को बलि देना चाहिए, अभी वो भी एक व्यक्ति अच्छी तरह होना चाहिए, ऐसा एक व्यक्ति को बलि देना चाहिए। अभी ऐसे समय में 2 दिन में वो बलि देने वाली है, हम तो किसी व्यक्ति के लिए ढूंढ रहे हैं, अभी यही व्यक्ति हमारे पास आ गया तो इसी व्यक्ति को बलि दे देंगे, इसी को बलि में चढ़ाएंगे, ऐसा इसके सर काट कर बलि दे देंगे हमारी देवता को, ऐसा सोचकर आदेश दे दिया, इसको जेल में रख लो। तो इसको जेल में रखा गया और 2 दिन हो गए। जिस दिन देवी की पूजा, कुछ देवता की पूजा हो रही थी, उस दिन इसका सर काटकर बलि देने के लिए इसको लाया गया, महाराज को लाया गया। जब वहां तलवार उठाकर इसको सर काटने वाले थे, उस समय में उन लोगों के बीच में जो पुरोहित है, उसने इसके हाथ को देखा, इसके हाथ को देखकर उनको रोक दिया, बोला था कि देखो, हमें जिस व्यक्ति को बलि देना है वो व्यक्ति पूर्ण होना चाहिए, उसके शरीर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके उंगली देखो, ये कम है, ये कट गई है इसके उंगली, इसीलिए ये बलि के लिए योग्य नहीं है, इसे अगर हम बलि देंगे तो हमें फल नहीं मिलने वाला है, इसे बलि देना संप्रदाय नहीं है, इसीलिए इसको बलि देने के लिए ये योग्य नहीं है, किसी और को ढूंढ कर लेके आओ, ऐसा कह दिया। तो बलि रुक गई। उसके बाद
वहाँ के जो सैनिक लोग हैं उन्होंने पूछा था कि तो ठीक है, ये बलि के लिए योग्य नहीं है, तो इसको अब हम क्या करें, फिर जेल में रख लें या छोड़ दें, ऐसा महाराज से पूछा। तब महाराज ने कहा, अगर ये बलि के लिए योग्य नहीं है तो इसको हमारे जेल में रखकर हम क्या करेंगे, जाके वापस छोड़ के आओ, जहाँ से उठा के लेके आया फिर जाके वही छोड़ कर आओ, ऐसा कहा। फिर इसको लेके जाके फिर वही छोड़कर आ गए। आने के बाद उसके जो सैनिक थे वो सभी जगहों में ढूंढ रहे थे, वो इसके पास आकर फिर इसको अपने राज्य में लेके गया। तब महाराज को पता चला कि उस दिन मेरा मंत्री ने जो कहा, ये उंगली कट गई, जो ये उंगली कट गई है ये भी भलाई के लिए ही होने वाली है, ऐसा मेरा मंत्री ने कहा, उसकी बात बिल्कुल सच थी। ऐसा सोचकर अपनी गलती को वो समझा और तुरंत ही मंत्री को बुलाया, आने के लिए बोला। मंत्री आ गया, उसे बोला था कि मुझे माफ़ करो, मैंने उस दिन तुमने जो कहा उसको ठीक से मैंने नहीं समझा और गुस्से में तुम्हें काम से निकाल दिया, इसीलिए मुझे माफ़ करो, तुम तो मेरा बहुत बड़ा आप्त हो, मैंने ऐसा गलत काम किया, इसीलिए मुझे माफ़ करो, आज से तुम मेरे साथ रहो, ऐसा कहा। तब उस मंत्री ने कहा, महाराज जी आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कहा। क्यों? क्योंकि मैंने गलत किया, तुम्हें काम से निकाल कर मैंने गलत किया ना, ऐसा बोला। तब मंत्री ने कहा, आपसे कोई गलती नहीं हुई, आपने मुझे काम से निकाल कर कोई गलती नहीं की, ये सब भलाई के लिए हुआ। क्यों? जैसा उंगली कटने से आपकी भलाई हुई, काम से निकालने से मेरी भलाई भी हुई है। क्योंकि अगर आप मुझे काम से नहीं निकालते थे तो मैं आपके साथ रहता था, आप जहां भी जाते हैं मैं आपके ही के साथ रहता था, जब आप जंगल में जाते थे शिकार में तो मैं भी आपके साथ रहता था, जब आप आगे तक जाते थे मैं भी आपके साथ वहां तक आता था, तो हम दोनों भी पकड़े जाते थे, हम दोनों को भी वो लोग बंदी बनाते थे। जब आपको बलि चढ़ाना था आपके उंगली को देकर आपको छोड़ देते थे, लेकिन मैं तो अच्छी तरह हूं, मेरा शरीर में कोई कमी नहीं है, तो मुझे पकड़ लेते थे, मेरी बलि चढ़ा मुझे वहां लोग बलि में उस समय में देते थे, लेकिन मेरी बलि नहीं हुई है क्योंकि मैं आपके साथ नहीं हूं। मैं आपके साथ इसीलिए नहीं हूं क्योंकि आपने मुझे काम से निकाल दिया, इसीलिए मेरी भी भलाई ही हुई है। क्योंकि मैं जाने के समय में मैं यही बात को कहकर गया था, आप मुझे काम से निकाल रहे, ये भी मेरी भलाई के लिए हो रही है, ऐसा कहकर मैंने घर चला गया, इसीलिए वास्तव में भी ये भलाई ही हुई, आपकी भी भलाई हुई है, मेरी भी भलाई ही हुई है, ऐसा उस संदर्भ में उसने कहा था मंत्री ने। ऐसा एक कथा है। इसीलिए ये सब हमें इसलिए कह रहे हैं कि मनः प्रसादः, भगवान ने ऐसा कहा, मन को प्रसन्न रखना चाहिए। अगर हम हमारे मन को सदैव प्रसन्न रखते हैं, काम क्रोध इत्यादियों को छोड़कर हमारे मन को अगर हम प्रसन्न रखते हैं, तब उससे भी अधिक सुख शांति किसी से भी हमें नहीं मिलता है। इसी से ही हमें अच्छा सुख शांति मिलती है, जीवन में हम सुखी रह सकते हैं, अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं, आध्यात्मिक मार्ग में भी प्रगति पा सकते हैं और लौकिक मार्ग में भी हम अच्छी प्रगति प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए ये बहुत बहुत आवश्यक है, मन को प्रसन्न रखना। कैसे भी संदर्भ हमारे सामने रहे, हमारे मन को प्रसन्न रखना चाहिए, तभी हम उस संदर्भ के जो योग्य मार्ग है उसे लेकर हम आगे जा सकते हैं। इसीलिए ये बहुत आवश्यक है, मनः प्रसादः। और सौम्यत्वम, दूसरों के साथ जब हम व्यवहार करते हैं हमारे मन बहुत ही मृदु होना चाहिए, मृदु स्वभाव के होना चाहिए। सौम्यत्वम। मौनम, मौनम मतलब क्या है? दुनिया में मौन शब्द का क्या अर्थ है? बात बंद करके रहना, इसी को मौन कहते हैं। परंतु यहाँ मौन जो है इसका तात्पर्य ये नहीं है कि बात नहीं करना। बात नहीं करना मौन नहीं होता है। मौन ये होता है कि जितना बात करना है उतना बात करना, जितना आवश्यक है उतना बात करना ही मौन कहा जाता है। जब हमें बात करना है तब करना चाहिए, जब हमें चुप रहना चाहिए तब चुप ही रहना चाहिए, ऐसा रहना ही मौन कहा जाता है। परंतु कुछ भी बात करने के लिए उसका संकल्प मन से होता है, इसीलिए मन को हमें अधीन में रखना चाहिए, ऐसा भगवान गीता में कह रहे। मनः प्रसादः सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह। आत्मविनिग्रह मतलब मन को अपना वश में रखना, इसी को विनिग्रह बोलते हैं। लेकिन बहुत लोगों को क्या होता है, मन जिस तरफ चले जाता है लोग भी उस तरफ चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। मन हमारा वश में रहना चाहिए।
जब मन हमारा वश में रहेगा तब हम जो कुछ भी चाहते हैं सब कुछ हम कर सकते हैं। इसीलिए आत्म विनिग्रह, आत्म मतलब मन, मन को अपना वश में रखना ये बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि मन को हम कैसा निग्रह में रखें, मन को अपना अधीन में हम कैसा रख सकते हैं, ऐसा बहुत लोग पूछते रहते हैं। ये जो मन है इसको हमारी जो बुद्धि है इसके द्वारा हम पकड़ सकते हैं। मन को हम किसी से भी पकड़ नहीं सकते हैं, हमारी बुद्धि जो है उसके द्वारा हम मन को पकड़ सकते हैं। जैसे कि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि हर एक व्यक्ति को बुद्धि है, मन है और इंद्रिय भी है। इंद्रिय मतलब हमारे आंखें और कान, सब कुछ, इनको इंद्रिय कहते हैं। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि यहां बुद्धि है, यहां इंद्रिय है, दोनों के बीच में मन रहता है। ये मन दोनों से संपर्क में रहता है, यहां इस तरफ इंद्रियों से और इस तरफ बुद्धि से, दोनों से भी संपर्क में रहता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि ये जो मन, ये हमारी बुद्धि जो है ये एक रथ के सारथी का समान है और हमारे मन जो है ये उस सारथी के हाथ में जो लगाम रहता है, जो रस्सी रहती है उसका समान है। हमारे इंद्रिय जो है वो उस रथ में जो घोड़े रहते हैं उनका समान है, ऐसा कहा गया। ये तीनों का भी एक संबंध होता है, यहाँ घोड़े हैं और यहाँ सारथी है, दोनों को अनुसंधान करने वाला, दोनों को जोड़ने वाली रस्सी बीच में होती है। ऐसा ही हमारी बुद्धि है और इंद्रिय है, दोनों के बीच में मन होता है। ये मन इधर उधर जाते रहता है। अगर इस मन को इंद्रिय बाहर खींच लेते हैं तो ये मन कहीं चले जाता है। अगर इस मन को बुद्धि अपने तरफ खींच लेते हैं तब ये मन हमारे अधीन में रहता है। इसीलिए जैसे कि अभी एक रथ में जो सारथी होता है उसको निपुण होना चाहिए, सारथी निपुण होना चाहिए, तभी वो अपने उस रस्सी से घोड़ों को अच्छी तरह पकड़कर रह सकता है और जहां जाना है वहां पहुंच सकता है। अगर वो निपुण नहीं है, वो घोड़ों को चलाना नहीं जानता है, तब क्या होगा, घोड़े जहां भागते हैं वहां इसको भी जाना पड़ेगा। ऐसा ही हमारे इंद्रिय जो है वो अपने हमारे मन को खींचते रहते हैं, इधर उधर खींचते रहते हैं। कैसा खींचते हैं इसका एक उदाहरण देते हैं हम। एक व्यक्ति है, एक बच्चा है, वो पढ़ने के लिए बैठा है, पुस्तक हाथ में रखा, पूछना है वो कैसा बनाता है। इन सभी बातों को जानकर मुझे भी ऐसा करना चाहिए, ऐसा फिर मन उसके बारे में सोचना शुरू कर देगा। और उसके बाद सामने कुछ सुंदर दृश्य दिख रहा है तो इसकी आंखें वहां चली जाती है। इस प्रकार हमारे इंद्रिय जो है ये इस मन को और उसके पीछे पीछे बुद्धि को भी खींचकर लेके चले जाते हैं। ये इंद्रियों का ऐसा स्वभाव है। जैसे कि एक रथ में घोड़े उस रस्सी को और उस सारथी को खींच के लेके जाते हैं, ऐसा। लेकिन अगर वहां वो सारथी निपुण होगा तब वो क्या करेगा, घोड़ों को अपने वश में रख लेगा।
अगर वो घोड़ों को पकड़ लेगा रस्सी के द्वारा, तब घोड़े कहीं नहीं भाग सकते हैं। ऐसा ही, लेकिन उसके लिए सारथी निपुण होना चाहिए। ऐसा ही हमारी बुद्धि जो है वो निपुण होनी चाहिए। उसको विचार करने के द्वारा हमारी बुद्धि को हमें मजबूत बनाना चाहिए। तब हमारी बुद्धि मजबूत होगी और हम जिस काम कर रहे हैं उस पर ही हमारी बुद्धि रहेगी। अगर बाजू में कोई बात कर रहे हैं तो इंद्रिय वहां जा रहे हैं, तो ये बुद्धि क्या करेगी? ये बुद्धि अगर निपुण होगी तब क्या करेगी? जब इंद्रिय बाहर भागते हैं तब इंद्रियों को बाहर भागने नहीं देती है, वापस खींच लेती है। तुम्हें यही रहना है। कोई भी आए, कुछ भी बात करें, तेरा कोई संबंध नहीं है, तेरा काम ये है, इसलिए अपने मन को यहां लगाओ। ऐसा ये बुद्धि इंद्रियों को सिखाएगी, लेकिन उसके लिए बुद्धि मजबूत होनी चाहिए। जैसा कि वहां सारथी को प्रशिक्षण होना चाहिए, प्रशिक्षण के द्वारा सारथी निपुण होता है। ऐसा ही अच्छी तरह विचार करके गुरु के उपदेश के द्वारा और ग्रंथों के अध्ययन के द्वारा हमारी बुद्धि को हमें मजबूत बनाना चाहिए। तब दुनिया में कुछ भी होगा उसकी तरफ हमारा मन नहीं जाता है। यही जिस काम पर हम हैं उसी काम पर हमारी बुद्धि रहेगी। इसीलिए ये मन को निग्रह करने के लिए एकमात्र साधन है हमारी बुद्धि, लेकिन उसके लिए हमारी बुद्धि मजबूत होनी चाहिए। ऐसा इसीलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं आत्मविनिग्रह, और उसके बाद अंत में कहा गया है भाव संशुद्धि रित्येतत्। भाव संशुद्धि मतलब इसका अर्थ यह है कि हमारा मन जो है वो शुद्ध होना चाहिए। कभी भी किसी को भी धोखा देने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर कुछ भी काम हम कर रहे हैं उसके द्वारा दूसरों को भी लाभ मिल जाए और हमें भी लाभ मिल जाए, ऐसे काम हमें करना चाहिए। ऐसा सोचना, इसी को आत्म भाव संशुद्धि कहते हैं। ऐसा करना मन से किए जाने वाला तप होता है। इसीलिए भगवान ने जैसा अभी गीता में कहा, देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरं तप उच्यते। इस प्रकार जो 3 प्रकार के तप कहे गए हैं, इनके आचरण करने से हमें जीवन में एक अच्छी प्रगति मिलती है, आध्यात्मिक मार्ग में एक अच्छी प्रगति मिलती है। आध्यात्मिक साधना में हम सर्वोच्च स्थान तक पहुंच सकते हैं, और ये आध्यात्मिक साधना हमारे लिए बहुत बहुत आवश्यक है। जैसा अभी हमने आरंभ में कहा कि ये जो शास्त्रों में जो कहे गए हैं, क्या इनकी आवश्यकता, आज के ज़माने में इनकी आवश्यकता क्या है, ऐसा हमें कभी प्रश्न नहीं करना चाहिए। कुछ प्रश्न आते हैं तो पूछना चाहिए और उसका ठीक जवाब को भी हमें जान लेना चाहिए। इसीलिए ये जो साधना है, ये जो धार्मिक आचरण है, इसके द्वारा हमें एक ऐसी शक्ति मिलती है कि उसके द्वारा हम सभी काम को अच्छी तरह कर सकते हैं। इसीलिए हर एक व्यक्ति को भी आध्यात्मिक संस्कार बहुत बहुत आवश्यक है। उसके द्वारा हमें अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त होता है। इसीलिए पूरा विश्व में भी आज के लोग क्या करते हैं, विश्व के कई कोनों से लोग यहाँ तक आते हैं, हमारे भारत देश में आते हैं और यहाँ आकर आध्यात्मिक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, क्योंकि वे लोग भी जानते हैं कि यहाँ के जो आध्यात्मिक प्रशिक्षण जो है ये जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। इस बात को सभी लोग जानते हैं, दुनिया के हर एक व्यक्ति जानता है, सभी लोग जानते हैं। इसीलिए बहुत दूर से यहाँ तक आकर हमारी गीता, पुराण, इतिहास इत्यादियों को, उपनिषद इत्यादियों को अपनी अपनी भाषाओं में अनुवाद करके वे सभी लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो ज्ञान है ये सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। इस ज्ञान से ही हमारे भारत देश इस दुनिया में इतना श्रेष्ठ स्थान में हुआ है। इसीलिए ऐसा जो आध्यात्मिक मार्ग, आध्यात्मिक साधना हर एक व्यक्ति के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। ऐसे इसीलिए इस संदर्भ में हम सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि लौकिक दुनिया में जितना भी काम, हर एक व्यक्ति को कुछ कर्तव्य, कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ लोगों को पढ़ाई और कुछ लोगों को नौकरी, ऐसा बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उसमें तो कोई संदेह नहीं है, और उनको अच्छी तरह करना ही चाहिए। और उसके साथ साथ धार्मिक आचरण के बारे में भी हमें सोचना चाहिए, आध्यात्मिक साधना के बारे में भी हमें अच्छी तरह सोचना चाहिए। ऐसा करने से हमारा जीवन सफल होता है और हमारे जीवन में हमें सदैव शांति से हम रह सकते हैं, सुख प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार आध्यात्मिक साधना में हमें आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा हम इस संदर्भ में सभी लोगों से
कहना चाहते हैं। जैसा कि अभी भी हमने आरंभ में कहा कि ये जो संस्था है, ये जीएमआर संस्था जो है, ये एक विशिष्ट संस्था होकर, एक प्रतिष्ठित संस्था होकर इसके द्वारा अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं और इसमें जितने भी हजारों लोग इस संस्था में काम कर रहे हैं, आप सबका एक अच्छा काम करने का एक शक्ति आपके पास है। ये बहुत बहुत संतोषजनक बात है। ऐसी संस्थाओं की और ऐसे लोगों के भी आवश्यकता हमारे देश के लिए बहुत बहुत है। हम बहुत लोगों से यही कहते रहते हैं, कुछ विद्यार्थी, कुछ छात्र हमारे पास आते हैं, वो यहाँ की पढ़ाई समाप्त करके यहाँ से विदेश में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। तब हम उनको यही बात करते, हम उनसे यही कहते हैं कि तुम यहाँ से विदेश में जाओ, तो यहाँ वहाँ अच्छी पढ़ाई मिल रही है, इसीलिए तुम वहाँ जा रहे हो, तो ठीक है जाओ। लेकिन वहाँ पढ़ाई समाप्त करने के बाद वापस तुम्हें यही आना चाहिए। फिर वापस यहाँ आओ, यहाँ पढ़ाई, वहाँ जाकर अच्छी तरह पढ़ाई करके सब कुछ सीख कर यहाँ तुम्हें आना चाहिए और इस देश के लिए काम करना चाहिए। ऐसा हम सभी बच्चों से यही कहते रहते हैं। जो भी हमारे पास आते हैं उनको यही हम कहते हैं, वहाँ जाओ और अच्छी तरह पढ़ाई करो, क्योंकि ऐसे लोगों की आवश्यकता, ऐसे संस्थाओं की, अच्छे संस्थाओं की आवश्यकता इस देश के लिए बहुत है। और इस देश में भी अच्छी प्रगति होनी चाहिए और अच्छे दुनिया में व्यावहारिक प्रपंच, अभी आध्यात्मिक प्रपंच में, आध्यात्मिक विचार में तो भारत से श्रेष्ठ देश इस दुनिया में कोई भी नहीं है, उसमें कोई संदेह ही नहीं है। परंतु उसके साथ साथ लौकिक विचार जो भी है, इनमें भी भारत देश को अच्छी तरह आगे आना चाहिए और उसके लिए सभी लोगों को यहाँ विशेष रूप से, जैसा अभी हमने कहा, ऐसे संस्थाओं के अंदर आप जैसे लोग अच्छे मेहनत कर रहे हैं और इसके द्वारा हमारे देश की भी प्रतिष्ठा बढ़ती है और हमारे देश में अभिवृद्धि भी विशेष रूप से होती है। ये बहुत बहुत संतोषजनक बात है और इस संदर्भ में आप सबको हम नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं कि शारदा चंद्रमौळीश्वरों की कृपा से और हमारे परम पूज्य गुरुदेव, जो इस दक्षिणामनाय श्रृंगेरी शारदा पीठ के वर्तमान शंकराचार्य के रूप में विराजमान हैं, जगत गुरु श्री श्री भारती तीर्थ जी महाराज, उनकी कृपा से आप सबको सभी प्रकार के श्रेय प्राप्त हो और आध्यात्मिक और लौकिक दोनों मार्गों में भी आप सबको अच्छी प्रगति प्राप्त हो, आपके जीवन सुखमय हो जाए और उसके द्वारा सभी लोगों को श्रेय प्राप्त हो, ऐसा हम इस संदर्भ में आशीर्वाद दे रहे हैं। और इस संस्था के जितने भी, इस संस्था में काम करने वाले जितने भी लोग हैं, सबको भी हम इस संदर्भ में नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि आप सबकी जो परिश्रम है और विशेष रूप से हमारे प्रिय जो जीएम राव जी है, उनकी जो मेहनत और उनके नेतृत्व में इस संस्था के द्वारा आप सबका जो मेहनत है, उसका फल को तो हम यहाँ सब देख ही रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, प्रत्यक्ष उदाहरण है ये सब हमारे लिए। तो ऐसा अच्छे अच्छे काम संस्था के द्वारा हो रहे हैं, इसीलिए इस प्रकार इस संस्था का अभिवृद्धि भी और भी विशेष रूप से इस संस्था के द्वारा कई जगहों में अच्छे अच्छे काम होवे, ऐसा हम इस संदर्भ में आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसा धार्मिक मार्गदर्शन करने के लिए ही जगत गुरु श्री आद्य शंकर भगवत्पादाचार्य जी का अवतार 1200 साल पहले हमारे देश में हुआ है। जगत गुरु आद्य शंकर भगवत्पादाचार्य जी ने जिस उपदेश किया, उस उपदेश की आवश्यकता हर एक समय में भी, हर एक व्यक्ति के लिए भी है। इसीलिए शंकराचार्य जी को हम जगत गुरु कहते हैं। जगत गुरु शब्द का क्या अर्थ है? कोई भी जगत गुरु नहीं बन सकता है इस दुनिया में। जगत गुरु शब्द का क्या अर्थ है? जगत गुरु शब्द का ये अर्थ होता है कि इस जगत में, यानी इस दुनिया में किसी भी कोने में रहने वाला कोई भी व्यक्ति के मन में अगर एक प्रश्न उठेगा कि मैं अपनी भलाई के लिए, अपने जीवन की सार्थकता के लिए मैं क्या करूं, ऐसा एक प्रश्न किसी के भी मन में उठेगा, उस प्रश्न का ठीक जवाब, ठीक मार्गदर्शन जिनसे मिलता है, उनको जगत गुरु कहना चाहिए। जगत गुरु शब्द का अर्थ यह है, आजकल तो बहुत लोग अपने नाम के साथ जगत गुरु नाम रख लेते हैं, अपने आप रख लेते हैं जगत गुरु नाम, लेकिन ऐसा रखना ठीक नहीं है, क्योंकि इस शब्द को हम सबसे पहला कहाँ प्रयोग करते हैं? कृष्णम वंदे जगत गुरुम। भगवान कृष्ण के बारे में इस शब्द को हम प्रयोग करते हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, क्योंकि भगवान ने गीता का उपदेश किया। इस दुनिया में जैसा अभी अभी कहा गया, ऐसा प्रश्न किसी का भी मन में उठेगा,
उस प्रश्न का ठीक जवाब गीता में हमें मिलता है। इसीलिए गीता का उपदेश करने वाला भगवान को हम जगत गुरु कहकर कीर्तित करते हैं। और उसके बाद इस शब्द को हम आद्य शंकर भगवत्पादाचार्य जी के विषय में उपयोग करते हैं, क्योंकि उनके जो कुछ भी ग्रंथ है, ब्रह्मसूत्र भाष्य है, भगवत गीता भाष्य है और उपनिषद टीका, उपनिषद भाष्य है और कई बहुत सारे प्रकरण ग्रंथ भी है, इन सभी ग्रंथों में उन्होंने इस पूर्ण विश्व के लिए, विश्व की भलाई के लिए बहुत सारे उपदेशों को उन्होंने किया था। इसीलिए उनको हम जगत गुरु कहते हैं। अगर एक बार उनके उपदेशों को अगर हम पढ़ लेंगे तब हमें समझ में आएगा कि उनके उपदेश आज की दुनिया में लोगों के लिए कितना आवश्यक है, ऐसा हम जान सकते हैं। इसीलिए उनको भी हम जगत गुरु कहते हैं। इसीलिए जगत गुरु आद्य शंकर भगवत्पादाचार्य जी के द्वारा ये दक्षिणामनाय श्रृंगेरी शारदा पीठ कर्नाटका में, हमारे भारत देश के दक्षिण भारत में कर्नाटका में श्रृंगेरी क्षेत्र में प्रतिष्ठापित किया गया है और वहाँ देवी भगवती शारदांबा की प्रतिष्ठा की गई है। इसीलिए इस पीठ का नाम है शारदा पीठ। और इस पीठ की अविच्छिन्न परंपरा में हमारे परम पूज्य गुरुदेव जगत ऋषि श्री भारती तीर्थ जी महाराज 36वें आचार्य के रूप में विराजमान हैं। उनकी कृपा से आप सबको सभी प्रकार के श्रेय प्राप्त हो, ऐसा हम इस संदर्भ में आशीर्वाद कर रहे हैं। और इस संदर्भ में GM राव जी को भी हमारा नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। उन्होंने बड़ी श्रद्धा से, बड़ी भक्ति से, बड़ी आदर से हमारा यहाँ आमंत्रण किया और हम भी बहुत खुशी से आज यहाँ आए हैं। आप सबको नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। आपको और आपके परिवार को भी हम नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं और आपके साथ इस संस्था में जो भी है सभी लोगों को और एक बार नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद देकर इस वाणी को यहाँ विराम देते हैं। हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। Hey